What are compound protein? These are the protein which are made up of amino acid along with some extra prosthetic group. तो इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोस्टैटिक ग्रुप भी आ जाता है अमाइनो एसिड के अलावा। न्यूक्लियो प्रोटीन को देखें, इट कंटेन प्रोटीन प्लस डीएनए और आरएनए। फास्फोप्रोटीन कंटेन प्रोटीन एंड फास्फोरिक एसिड as a extra prostatic group. Then lipoprotein, protein and lipid with extra prostatic group. Glycoprotein contain carbohydrate as a extra prostatic group. Chromoprotein as a color substance as a extra prostatic group. Then metalloprotein contain metal as a extra prostatic group. If we see the nucleoprotein, these are the protein. These are the protein which are formed as a result of conjugation of certain basic protein, which are histone. Histone are the basic protein can carry positive charge with nucleic acid, which contain negative charge. So they make electrostatic interaction with each other. These proteins are most abundant in tissue having large proportion of nuclear material such as yeast and other glands and sperms. Phosphoprotein, these are the protein conjugated with phosphoric acid, include casein of milk and vitelline of egg yolk. Then we have lipoprotein. These are the conjugated protein containing lipid substances like lecithin, cholesterol, triglyceride and fatty acids. इसमें होता क्या है, ये जो लेसिथिन है फास्फोलिपिड है, इट मे कवरिंग ओवर द surface of cholesterol ester, triglyceride and fatty acid. And we have a physical protein interaction over the surface of this lipid bilayer to make a lipoprotein. These occur in the blood plasma, nervous tissue, egg yolk, milk, and cell membrane. Bacterial antigen and viruses also contain lipoprotein like chylomicron, HDL, LDL, VLDL, IDL. Chylomicrons are the first formed in the small intestine when lipid digestion completed. They get triacylglycerol and cholesterol and fatty acid get packed in the chylomicron and then transported into the destination. And high density lipoprotein, very low density lipoprotein, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein. This HDL is also known as good cholesterol protein. This LDL is also known as bad cholesterol protein. Why it is known as good cholesterol protein? Because it carries the cholesterol from blood to the tissues. Why it is bad cholesterol protein? Because it carries cholesterol from tissues to the blood. Derived protein. This class of protein include the substances which derived from the simple hydrolysis of simple or compound protein. These are formed from native protein by the action of heat, physical forces, chemical factor, X-rays and enzymes. ठीक है, और इसको हम दो तरह से आगे सब डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन एंड सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन. If protein are changed into primary derived protein directly by the action of heat, UV radiation, X-rays, acid and alkali, this is known as primary derived protein. Like fibrin from fibrinogen, myosin from myosin and adenosine from adenosine. Okay. Secondary derived protein are the sequence-wise hydrolysis of protein into smaller molecular protein with the help of enzyme. These are known as secondary derived protein. For example, as secondary derived protein are formed by the progressive hydrolysis of protein by enzyme. For example, protein change into proteins, metalloprotein, proteases, peptoses, peptide, and amino acids. These are the sequence-wise hydrolysis with the in the presence of enzyme and water. Then the structure of protein classification on the basis of their structure, primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. Uh,
What are primary structure of protein? It is made up of the number and the sequence of amino acid residue along the peptide chain is called the primary structure of the protein. इसमें आप स्टेट चेन में देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, प्लस इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, प्लस इसमें लीनियर सीक्वेंस में कितने हैं वो. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैव बीन explained. Insulin contains 51 amino acids. Ribonuclease contain 124 amino acid. Alpha chain of hemoglobin contain 141 amino acid. Similarly, beta chain contain 146 amino acid. There is two way to represent the amino acid in a straight chain or primary structure. One is the 3-letter code and other is 1-letter code. For example, glutamate is represented as a 1-letter code with E. Alanine represented is A. Lysine with K. Glycine with G. Tyrosine with Y. Alanine with A. अगर हमको कोई अमाइनो एसिड सेंटर में नहीं पता कि इधर ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, तो ये अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा करता है. तो हम वो तीनों लिख सकते हैं जो इधर हो सकते हैं. ठीक है, कामा से उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो ये वो है जब हमें पता नहीं होता कि इधर सेंटर में कौन सा माइनस है. Where there is uncertainty about the order of a portion of polypeptide, then the questionable residue are enclosed in brackets and separated by columns. ठीक है, इस तरह से. Secondary structure of protein contain two elements. One is the alpha helix and the other is the beta pleated sheets. What are alpha helix? Alpha helix is coiled structure stabilized by the intra-chain hydrogen bonding. ठीक है, it is a clockwise rod-like spiral and is formed by intra-chain hydrogen bonding between the carbonyl group of each amino acid and the amino group of the amino acid that is situated 4 residue head in the linear chain. यानी कि एक का कार्बोनाइल ग्रुप और उससे अगले चौथे का एक का कार्बोनाइल ग्रुप और चौथे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप एक ही चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. ये है अल्फा हेलिक्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये आपने समझना है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें स्टेबलाइजिंग फोर्स पेप्टाइड बॉन्ड है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबलाइजिंग फोर्स. तो ये मोस्टली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है प्रोटीन के अंदर. तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो एक टर्न के अंदर जो डिस्टेंस है 0.54 नैनोमीटर है, इसके अंदर अमाइनो एसिड 3.6 है. एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से डिस्टेंस 0.1 नैनोमीटर है. तो ये तो है क्या alpha helix. Then we go for the beta pleated sheet. ये आप देख सकते हैं दो कन्फिगरेशन है, एक लेफ्ट हैंडेड है एक राइट हैंडेड है. ये वाला राइट हैंडेड जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसमें फिंगर का आपकी तरफ है, ये अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ये जो है राइट हैंडेड है, यही जो है प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं. बीटा प्लेटेड शीट आर मोर सिंपली द बीटा शीट डिफर मार्केडली फ्रॉम द रॉड लाइक अल्फा हेलिक्स. जो बीटा शीट्स हैं वो एक रिबन की तरह स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में होती हैं, जबकि अल्फा हेलिक्स जो होती हैं वो रॉड लाइक होती हैं. जिस तरह डीएनए नहीं होता उस तरह ये रॉड लाइक होती हैं. पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड बीटा स्ट्रैंड इन ए बीटा शीट इज ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड रेदर देन बीइंग टाइटली कॉइल्ड एज इन अल्फा हेलिक्स. ये जो है ना फुली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका. तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक है पैरेलल बीटा शीट्स, दूसरी है एंटी पैरेलल बीटा शीट. जो पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं वो लेस स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू एंटी पैरेलल बीटा चेन्स. क्यों? इसकी रीजन है, इसमें एक अमाइनो एसिड दो अमाइनो एसिड के अमाइनो या कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है,
और एंटी पैरेलल में क्या होता है, एक माइनो एसिड दूसरे माइनो एसिड के एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो एक माइनो एसिड के साथ ही दूसरे माइनो एसिड का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और क्लोज रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग होती है एंटी पैरेलल में। तो इसमें क्यों होता है, एडजेसेंट बीटा स्ट्रिंग रन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ जाती हैं या राइट या लेफ्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कनेक्ट each amino acid on one strand with two different amino acid on the adjacent strand. एक माइनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे और माइनो ग्रुप दूसरे के दो माइनो एसिड के कार्बोनाइल या माइनो ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। इसमें क्या है कि एक माइनो एसिड दूसरे माइनो एसिड के एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट आ जाता है, तो एक माइनो एसिड का माइनो और दूसरे का कार्बोनाइल ग्रुप एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है। Adjacent beta string run in opposite direction, hydrogen bond between the amino and carbonyl group connect each amino acid to a single amino acid on adjacent string, but thus stabilizing the structure. So roughly half of the residue in typical globular protein residue. हाँ जी सर, जो एंटी पैरेलल उसमें अमीनो एसिड कम होंगे एंटी क्लॉकवाइज? जी सर, जो मतलब एंटी पैरेलल हैं जो, नहीं माइनो एसिड नहीं कम, ओरिएंटेशन में वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। yes, ओरिएंटेशन इसमें एक माइनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे माइनो एसिड के माइनो ग्रुप के सामने बिल्कुल सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। उसमें थोड़े से डेविएट हो जाते हैं, तो एक माइनो ग्रुप और दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है एक तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, दूसरा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है बिटवीन द चेन्स, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया कि एक माइनो और कार्बोनाइल ग्रुप ने दो डिफरेंट माइनो एसिड को अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। इस केस में आप देखें बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं एक दूसरे, एंटी पैरेलल के केस में। माइनो एसिड उस केस में भी इस केस में भी सेम रहते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन का फर्क आ जाता है, ठीक है। ठीक है सर। सर ये पेप्टाइड स्ट्रांग बॉन्ड पेप्टाइड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता है ना माइनो एसिड के दरमियान, वो तो स्ट्रांग होता ही होता है, ठीक है सर। ये तो है एक चेन का दूसरी चेन के साथ, या अगर अल्फा हेलिक्स है तो उसमें आपस में माइनो एसिड का बॉन्डिंग हो रही है, वो आपस को में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है ना, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंट होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। मसलन कोलेजन हो गया, ये कैराटिन हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। जबकि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट है जब स्ट्रांगली कॉइल करते हैं फिर टर्शियरी बनता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन में होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबुलर और फाइब्रस का भी थोड़ा सा एंड के ऊपर हम डिफरेंस देखेंगे। roughly half of the residue in the typical globular protein residue in alpha helices and beta sheets are and half in the loops and turns bends and their extended configuration। कहता है जो सेकेंडरी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने की तरफ जाता है तो उसमें हाफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं और हाफ उसमें लूप्स बेंड्स और टर्न्स होते हैं जो कि उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लूप्स हैं जिसको बीटा शीट से कनेक्ट हैं, ये लूप्स रेड फॉर्म में भी हैं, ठीक है, और येलो कलर में भी हैं। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं? ये थोड़ा सा एडवांस है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। और इन बिटवीन होता है सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। मैनी ग्लोबुलर प्रोटीन कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अल्फा हेलिसेस एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। दीज पैटर्न आर कॉल्ड सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि जब बहुत सी अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स आपस में अटैच होती हैं, या सिर्फ बीटा शीट बहुत ज्यादा आ जाती हैं, या सिर्फ अल्फा हेलिसेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं और वो आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू टर्न्स एंड लूप्स एंड, और बाद का बीटा शीट्स के दरमियान जो कनेक्टिंग फोर्स होती है वो अल्फा हेलिक्स होती है,
तो ये सारे क्या है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसकी कुछ एग्जांपल हम करेंगे। तो सबसे पहली है बीटा अल्फा बीटा। इसमें क्या होता है कि दो पैरेलल बीटा स्ट्रैंड कनेक्ट होती हैं अल्फा हेलिक्स से। इसमें लूप्स एंड टर्न नहीं है, इसमें क्या है, पैरेलल बीटा शीट्स हैं, ये कनेक्ट होती हैं अल्फा हेलिक्स के साथ। इसी तरह बीटा मीटर में देखें तो टू एंटी पैरेलल बीटा शीट आर कनेक्टेड द पोलर अमीनो एसिड एंड ग्लाइसिन टू इफेक्ट द अब्रप्ट चेंज इन द डायरेक्शन। तो ये टर्न के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट। ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं फिगर में, ये आप देख सकते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट जो है ना वो कनेक्टेड है बाय ये देख सकते हैं थ्रू लूप्स एंड बेंड्स। तो in beta meter two anti-parallel beta sheets are connected by polar जो टर्न्स और लूप्स होती हैं इसमें मोस्टली जो अमीनो एसिड होते हैं पोलर अमीनो एसिड होते हैं और इसके साथ ग्लाइसिन होता है या सम टाइम प्रोलिन होता है। ये चीजें याद रहेंगी। जो लूप्स एंड टर्न्स होती हैं जो एक यानी कि बीटा शीट्स को या अल्फा एसिड को आपस में मिलाती हैं, मोस्टली बीटा शीट को आपस में मिलाती हैं। उनके अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो पोलर होते हैं, प्लस उसमें ग्लाइसिन होता है। इन अल्फा अल्फा यूनिट टू सक्सेस ऑफ अल्फा हेलिसेस आर, इसमें अगर आप बीटा शीट्स को देखें तो उसमें ज्यादा टर्न होती है, ठीक है, बीटा टर्न होती है। जो अगर आप अल्फा अल्फा तो देखें तो उसमें ज्यादातर लूप होती है, ठीक है। ये मोस्टली केसेस में आपने यही देखा है। नॉन हेलिकल सेगमेंट बिकम इम्बेस्ड बिटवीन ऑफ कंपैटिबल साइड चेन। ये दरमियान में फंस जाते हैं जो 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 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है बाय लूप्स एंड लूप्स के जरिए। जो several beta barrel arrangement are formed when various beta configuration fold back on themselves। ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और है कि many beta barrels सब यूनिट। बीटा बैरल क्या होती हैं कि पैरेलल बीटा शीट जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं थ्रू टर्न। ये आप देख सकते हैं, ये बीटा बैरल है, ये पैरेलल बीटा शीट्स हैं, बैरल की शक्ल में है, ये आपस में टर्न के जरिए भी कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा एक और मॉडल है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, व्हेन एन एंटी पैरेलल बीटा शीट डबल बैक ऑन इटसेल्फ, यानी कि दो दफा एक दूसरे के ऊपर आती है इन ए पैटर्न दैट रिजेंबल इन ए कॉमन ग्रीक पोर्ट्री डिजाइन, द मोटिव इज कॉल्ड ग्रीक की। इसको हम ग्रीक की कहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं ये डबली एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है, और ज्वाइन होती हैं थ्रू टर्न्स एंड लूप के जरिए। ये आप देख सकते हैं, ये है ग्रीक की मोटिफ, और ये जो होती है वहाँ पे बर्तन साजी उसकी शक्ल की ये होती है। ये डबली एक दूसरे के ऊपर बैक पे आती हैं और कनेक्ट होती हैं थ्रू लूप्स एंड टर्न। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीकी मॉडल। व्हेन एन एंटी पैरेलल बीटा शीट डबल बैक ऑन इटसेल्फ in a pattern that resembles in a Greek key pottery design, the motif is called Greek key। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब ये जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये एक्सेसिवली फोल्ड करता है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द ओवरऑल थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज कॉल्ड द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The shape of globular protein involves the interaction between amino acid residues that may be located at considerable distance from each other in the primary sequence of the polypeptide chain and include alpha helicase and beta sheets। अब वही ये है कि शेप जो ग्लोबुलर प्रोटीन की होती है, मैं एक सेंटेंस बोलता होता हूँ, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो डिटरमिन करता है कि इसका टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। The primary structure of a protein determine the tertiary structure of a protein। ओके, तो जो शेप ग्लोबुलर प्रोटीन की बनती है जो कि एक दूसरे से कंसिडरेबल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, इसमें ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट मौजूद हैं और वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें 5 तरह की फोर्सेस आ जाती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं? ये 5 फोर्सेस।
एक तो ये है कि जब एसिडिक अमाइनो एसिड, लेट्स सपोज कि ये आपके पास ग्लूटामिक एसिड है और ये आपके पास लाइसिन है, लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ग्लूटामिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी। एक तो फोर्स ये है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि अगर एक अमाइनो एसिड का लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के सामने आ गए तो हाईली नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जो इंटरेक्शन करेगा वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान भी हो सकती है और एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान भी हो सकती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कौन सी होती है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ये नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड जब आ जाते हैं सामने तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। डाइसल्फाइड लिंकेज कब बनेगी? जब सिस्टीन रेजिड्यू सिस्टीन के सामने आ जाएगा तो डाइसल्फाइड लिंकेज बनेगी। ठीक है, सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है, ये जो एलिफेटिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड एक दूसरे के सामने आ गए। तो ये 5 फोर्सेस हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करती हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीसरी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तीसरी डाइसल्फाइड, चौथी डाइसल्फाइड लिंकेज है और पांचवी क्या है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं या डाइसल्फाइड लिंकेज बनती है ये दो कोवलेंट हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जो बकाया 3 है जिसमें आयनिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और तीसरी है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन द एंजाइम ट्राइओस फास्फेट एसिड। यहाँ पे आके लिगेंड लगता है, सबस्ट्रेट लगता है और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। डोमेन क्या होती है? ए डोमेन इज ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए प्रोटीन स्ट्रक्चर सफिशिएंट टू परफॉर्म एक पर्टिकुलर केमिकल और फिजिकल टास्क सच एज बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट और अदर लिगेंड। फॉर एग्जांपल अगर हेमोग्लोबिन को देखें तो इसके 4 लिगेंड होते हैं, तो ये 4 इसकी डोमेन होती हैं, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है ये। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है प्रोटीन का जो सबस्ट्रेट को आपस में लगाता है, यहाँ उसको क्या कहते हैं, लिगेंड को आपस में साथ लगाता है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अदर डोमेन में है एंकर और प्रोटीन टू ए मेम्ब्रेन और इंटरेक्ट विद द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल दैट मॉड्यूलेट्स इट्स फंक्शन। ठीक है, टू डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ सब यूनिट ऑफ होमोडाइमेरिक एंजाइम ए बैक्टीरियल क्लास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएडेक्टिव। इसमें आप देख सकते हैं इसकी ये डोमेन्स हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके लगता है और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ये डोमेन्स हैं, ये आपस में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज डिक्टेटेड बाय अमाइनो एसिड सीक्वेंस। मैं वही कह रहा हूँ, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो डिक्टेट करता है कि किसी प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, उसमें लूप्स ज्यादा होंगी, हिल्स ज्यादा होंगी, ये डिटरमिन करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन 2 प्रोटीन है हमारे पास, एक प्रोटीन की बनी हुई है, एक टेट्रा हमारा 4 प्रोटीन की बनी हुई है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जो हेमोग्लोबिन है वो 4 प्रोटीन की बनी हुई है, मायोग्लोबिन 1 प्रोटीन की बनी हुई है। अब मायोग्लोबिन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, वो है तो कम्पैक्ट, उसमें ऑक्सीजन रेशियो भी कम होती है, तो वो फंक्शनल प्रोटीन है, ऑक्सीजन को स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। जबकि हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर। ओके, हो गया था।
ठीक है। या आप कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट। Commonly occurring example are the dimer, tetramer, trimer consisting of 2, 3 or 4 polypeptides। अब टेट्रामर की एग्जांपल हम कर चुके हैं किसमें, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज टेट्रामर प्रोटीन। इसी तरह डाइमर में हम कर चुके हैं क्रिएटिन फास्फोकाइनेज एसोजाइम्स के अंदर, तो वो एक डाइमेरिक है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर प्रोटीन का रखते हैं। दीज सब यूनिट, इसमें भी वही नॉन कोवलेंट फोर्सेस होती हैं जो हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, जो इसको स्टेबिलिटी का प्रोवाइड करती है। लेकिन इसको मेजर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है डाइसल्फाइड लिंकेज, जो एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ लिंक करती है। देन न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है, इसको आप ग्रेड 1 प्रोटीन भी कह सकते हैं जो कंप्लीट प्रोटीन होती हैं। तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के लिहाज से प्रोटीन दो तरह की होती हैं, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन को आप ग्रेड 1 प्रोटीन भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट को आप ग्रेड 2 प्रोटीन भी कह सकते हैं। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 70-80 से ज़्यादा होती है और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 70 से कम होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें सारे होते हैं, इसमें 1-2 मिसिंग होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसको हम ग्रेड 1 प्रोटीन कहते हैं, इसको ग्रेड 2 प्रोटीन कहते हैं। ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, तो ये ग्रेड 1 प्रोटीन है। गुड या कंप्लीट प्रोटीन है, गुड फॉर हेल्थ एंड बैलेंस ग्रोथ। एग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, फिश, मीट एंड चीज। इनकम्प्लीट प्रोटीन lack one or more essential amino acid, can not support expected growth and health completely। प्रोटीन फ्रॉम प्लांट एंड सीरियल, बीन्स, नट, गेलेटिन, ये जो है ये ग्रेड 2 प्रोटीन है, इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होती है। फूड ब्लेंड इज द सॉल्यूशन, इसमें हम डिफरेंट प्रोटीन को यूज कर सकते हैं ताकि एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी पूरी हो जाए। दूसरा है फाइब्रस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये दो तरह की होती है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस में क्या होती है, एक्सियल रेशियो 10 से ज्यादा होगी तो लंबे लंबे फाइबर बनेंगे। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज्यादा होता है प्रोटीन के अंदर, फाइब्रस के अंदर इसमें लंबे लंबे फाइबर बनेंगे, क्योंकि या तो अल्फा हेलिसेस होंगी या बीटा प्लीटेड शीट्स होंगी, तो इसमें लॉन्ग। अब ये अगर एक आप फिंगर को देखें तो इसमें 1-2-3 पार्ट है, और ये अगर फिंगर की वेड्थ को एक पार्ट कंसिडर कर लें तो इसकी एक्सियल रेशियो 3 बनती है। एक तो इसमें एक्सियल रेशियो होती क्या है, टोटल लेंथ के अंदर ब्रेड्थ देखते हैं उसका एक पार्ट और लेंथ के पार्ट कितने हैं इसके अंदर, वो एक्सियल रेशियो होती है। ठीक है, तो मसलन ये फिंगर है, इसकी अगर एक ये वेट्स है, इसको एक कंसीडर कर लें तो इसमें 4 टाइम लेट सपोज के, तो इसकी एक्सियल रेशियो 4 है। तो जितनी अगर एक्सियल रेशियो 10 से ज्यादा है तो उसमें लॉन्ग और नैरो फाइबर बनेंगे, तो वो इसको फाइबरस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन राउंड और स्फेरिकल होती है ड्यू टू द हाईली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो है फाइबरस प्रोटीन ये स्ट्रक्चरल होती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शनल होती है। अमीनो एसिड सीक्वेंस रिपीटेड अमीनो एसिड सीक्वेंस होती हैं, और इसमें जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें इरेगुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। क्योंकि इसमें क्यों रिपीटेड अमीनो एसिड सीक्वेंस, क्योंकि इसमें अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स बार बार आती हैं। ड्यूरेबिलिटी लेस सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर, क्योंकि फाइबरस होती हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं, तो उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। मोर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच टेम्परेचर, एंजाइम की आप एग्जांपल ले लें, वो टेम्परेचर चेंज होने से, पीएच चेंज होने से काम ही करना बंद कर देते हैं। एग्जांपल कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रिन, एक्टिन, केराटिन, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। सॉल्युबिलिटी, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं और ये सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। फिर है ग्लोबुलर प्रोटीन चेन इंटरवाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए स्फेरिकल शेप, दीज आर वाटर सॉल्युबल। सर ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, एक मिनट सर, ये पहले नहीं पढ़ाया था, ज्यादा पढ़ा दिया सर, पीछे तक पढ़ाया था सर। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा दिए हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं इसमें एक ये तो आपका है फाइब्रस और ग्लोबुलर में कि ये अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी प्रोटीन में ज्यादा है
तो फाइब्रस होंगी जिसमें कम्पैक्ट स्ट्रक्चर आता है, यानी कि स्ट्रांगली कॉइल करती हैं, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती हैं। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, और फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। अगर आप फंक्शन की बेस पे क्लासिफाई करें तो कैटालिटिक प्रोटीन कौन सी हैं, जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्टोरेज प्रोटीन कौन कौन सी हैं, या न्यूट्रेटिव प्रोटीन, असल में ये न्यूट्रेटिव प्रोटीन होना चाहिए था। ये अल्ब्यूमिन है, कैसीन ऑफ मिल्क है, जीन है, इसमें सारे तकरीबन सारे, जीन के अंदर एक एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन कम होता है, तो ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो ये न्यूट्रेटिव प्रोटीन भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को लेके जाती है, टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है। कम्युनिकेशन में हार्मोन्स है, इंसुलिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। कंट्रैक्टाइल में कौन से हैं, एक्टिन, मायोसिन, डाइनिन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। प्रोटेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। टॉक्सिन में है, स्नेक विनोम के अंदर लेसिथिनेज एंजाइम है, जो आपके रेड ब्लड सेल के अंदर जो लेसिथिन होती है उसको डाइजेस्ट करके डिस्टेबल कर देता है। स्ट्रक्चरल क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, केराटिन, एयर एंड कोलेजन। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। हाँ जी, क्वेश्चंस करें या लिख दें कि सब समझ आ गई है। सर नो क्वेश्चन सर। हाँ जी, पूछें। नो क्वेश्चन सर। अच्छा, तो आज तो आपकी प्रोटीन कंप्लीट होगी, ठीक है। जी सर। तो सर अगला कल चैप्टर कल ग्लाइकोलिसिस करवा दें सर। कल ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, और उसके साथ क्रैब साइकिल, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये इस तरह पाथवे है सर, वही करवा दें। हाँ, कल ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल दोनों हो जाएंगे, और हमारे लायक। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, चलें, कल क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। सर एक जी सर। दोनों करवाएं कल। हाँ जी, सर पहले कोर्स थोड़ा है, जो आप दो करवा रहे हैं कल एक क्लास में, एक ही करवाएं साइकिल। वो पहले पढ़ाया हुआ है सर ने। ये पहले पढ़ा रिवाइज। हुआ है, रिवाइज में तो थोड़ी स्पीड होती है ना। ठीक है सर, ये दोनों कल करवा दें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जितना हमने पढ़ा है ना, एक दफा सारा रिवाइज हो जाए, तो जी सर। तो फिर हम कोई कंफ्यूजन रहेगी तो उसको, जब क्लासें लगेंगी ना 1 जून को, तो उसको दोबारा वाइट बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ ना हुआ, कोई बॉन्डिंग समझ नहीं हुई, तो उधर अगर वाइट बोर्ड पे भी हम हाथ चला लेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन?